we are back again with our amazing team and resource person, Vishal. As legend says, the show must go on. So Vishal sir will be continuing the workshop. Now I hand over to Vishal sir. Till then, you can ping your doubts in the chat box, which will be answered at the end of the session by Vishal sir. Welcome, sir. Yeah. Okay, I'm sharing my screen. So just now we have seen here boundary blend. How to make a boundary blend object while doing surfacing. Now I will show you some examples existing industrial assemblies. I will show you the examples. Select to check the part. This Texas. Project. US special project. Okay, I will show you some example which I have created generator assembly. This is the drafting part of the generator assembly, and this is bill of material for this generator assembly. And we have shown here balloons, bill of materials, text, and section view, exploded view, and detail view also. Here it is complete section view, complete exploded view of the generator assembly. You can see here. Now I will show the exact part in Creo. Data E all-in-one. Data E all-in-one. Your special project. Okay, in this you can see this engine assembly parts. I will show you. This is the crankshaft generic part. Okay, see this. This is the engine assembly, crankshaft part, piston connecting rod, and crankshaft. If you open this part, you can see this piston. So this piston, and here it is future. How many future we have created for creating these parts. See this. This is the main. Then from here, protrusion, cutout, inside. Step by step, we have created this part. Okay, main engine assembly I will show you. From here, we can see the assembly.asm. Oil pump assembly. This is the oil pump assembly here. Complete engine assembly.
engine body. Okay. See, this is the engine assembly. Generic model will open it. See this complete engine assembly. Now it is regenerating. It will take some time to regenerate the assembly. Cancel. Now here you can see complete engine assembly. You will see here. This is the engine block. If you open this engine block, it will look like this. We have given color for transparent purpose. Transparency we have shown here. And is inlet jacket, water jacket also applied in this block. Again, here it is the option for view manager. From here we can do the simple assembly like related to timing, valve train head. Suppose we are working timing belt, valve train. We'll just double click on it. It will highlight only this timing belt part. See this. Like this we have created large assembly. Whenever we are working large assembly, जब भी हम large assembly के ऊपर काम करते हैं तो हमें ये simplified representation बहुत यूजफुल है. इसमें जो पार्ट के ऊपर हमें काम करना है वही पार्ट यहाँ पे शो करेगा, तो हमें असेंबली करते टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा इन दैट केस. देखो यहाँ पे वाटर पंप ब्लॉक, ये वाटर पंप का ब्लॉक है. यहाँ पे टाउट दिखाया है. यहाँ पे वाटर फिक्स, देन ये डिफॉल्ट वाला रिप है. मास्टर रिप बोलते हैं हम उसको, डिफॉल्ट वाला रिप है. देन यहाँ पे एक्सप्लोडेड व्यू, यहाँ पे एक्सप्लोड व्यू इसका क्रिएट नहीं किया है. सेक्शन में जाके देखेंगे, टेस्ट के लिए एक सेक्शन क्रिएट किया है. यहाँ पे टेस्टिंग का सेक्शन एक क्रिएट किया है. ये सेक्शन यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं ऐसे. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड असेंबली में एक शो करता हूं. ऑल इन वन स्पेशल. यहां से अल्टरनेटर असेंबली है. ये अल्टरनेटर असेंबली देखो, ये है अल्टरनेटर. ये अल्टरनेटर का असेंबली है. यहाँ पे अगर आपने एक्सप्लोड व्यू देखा, डिफॉल्ट एक्सप्लोड किया है, ये प्रॉपर एक्सप्लोड किया नहीं है इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है. अगर मुझे इसमें असेंबली में एक्सप्लोडेड व्यू वगैरह क्रिएट करना है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू मैनेजर में जाके यहाँ से एक्सप्लोड में नया व्यू हमें क्रिएट करना पड़ता है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्रिएट करके दिखाता हूँ. ये जो असेंबली है इसको हम एक बेसिक एक्सप्लोड व्यू क्रिएट करेंगे जस्ट. तो यहाँ पे व्यू मैनेजर में यहाँ पे न्यू व्यू क्रिएट करना है हमें, एक्सप्लोड का न्यू व्यू. सपोज मैंने इसको नाम दे दिया व्यू ए. देन से एंटर, राइट क्लिक इट एंड एडिट पोजीशन. इसका पोजीशन हमें एडिट करना है. कंट्रोल डी, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पे रखता हूं मैं इसको. अब इसका जैसे भी असेंबल होने वाला है वैसे उसको बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन से ये बाहर आने वाला है ये पार्ट, ये डायरेक्शन से ये पार्ट बाहर आने वाला है. देन जो कुछ भी पार्ट्स है एक एक को बाहर लेना है. यहां से जैसे भी असेंबल हो रहे सभी को एक एक को बाहर लेना है हमें. सपोज ऐसा व्यू मैंने क्रिएट किया है.
देन से ओके। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेव करना पड़ता है हमें। ये व्यू सेट हो गया ए। अभी ये एक्सप्लोडेड, डिफॉल्ट एक्सप्लोडेड ऐसा दिखेगा। अभी एक्सप्लोडेड नहीं चाहिए मुझे, सो यहाँ पे एग्जिट कर दिया मैंने। अगर मुझे सेक्शन क्रिएट करना है तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सेक्शन टूल है, यहाँ से हम सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो सेक्शन क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैंने इसका फेस लिया, ये देखो, जैसे चाहे वैसा सेक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जितना कट करना है उतना सेक्शन वैल्यू अप्लाई करो उसको, देन से ओके। यहाँ पे ओके बोल देना है इसको। अभी दूसरा जो है ऑफसेट सेक्शन है। इसमें ऑफसेट सेक्शन में क्या होता है, हमें प्लेन सेट करना पड़ता है। यहाँ पे सेक्शन अप्लाई किया हमने, सेक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट इट। यहाँ पे प्लेन्स, ये प्लेन्स मैंने ऑन किया, यहाँ पे प्लेन हाइड कर दिए। यहाँ पे है मॉडल ट्री। यहाँ पे देखेंगे ट्री फिल्टर, ट्री फिल्टर में ये प्लेसमेंट, फोल्डर, मटेरियल, बॉडी, इतना सारा ऑप्शन आपको अगर लेना है तो ले सकते हैं, जरूरत नहीं उसकी। यहाँ पे लेयर ट्री, मैकेनिज्म ट्री, मैकेनिज्म ट्री अलग दिखेगा, लेयर ट्री अलग दिखेगा। यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अभी हम सिंपल असेंबली देखेंगे। असेंबली हमें स्टार्ट करना है। अभी असेंबली में क्या है, सिंपल असेंबली कॉल कैसे करते हैं, पार्ट असेंबल कैसे करते हैं, असेंबली कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं, ये टॉपिक हमें जनरली देखना है अभी। सो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल न्यू एज असेंबली, यहाँ पे असेंबली मॉड्यूल है। असेंबली मॉड्यूल में जाके यहाँ पे एक काम करेंगे, असेंबली से पहले हम शीट मेटल ले लेंगे। पार्ट मॉडलिंग एज अ शीट मेटल, यहाँ से शीट मेटल है। शीट मेटल में यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन हटा दिया है मैंने यहाँ से, और ओके बोल दिया है इसको। MMNS पार्ट शीट मेटल, इसको ओके बोल दिया मैंने। ओके, देन यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल डी, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन में यहाँ पे शीट मेटल का फीचर्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमें सबसे पहले प्लेनर फीचर क्रिएट करना है। एक्सट्रूड से भी हम कर सकते हैं, बाउंड्री ब्लेंड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेनर फीचर में डिफॉल्ट थिकनेस शीट का कितना रखना है, ये डिफॉल्ट थिकनेस आएगा यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, नॉर्मल, और यहाँ से हमें क्या करना है, एक शीट क्रिएट करना है। सो मैंने सिंपल एक कॉर्नर वाला शीट, यहाँ पे ऐसे एक शीट क्रिएट किया। ओके, इसका थिकनेस जो हमने अप्लाई किया है 1 mm थिकनेस है। अगर थिकनेस मुझे इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ से हम थिकनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके बोल दिया। अभी बाकी के जो ऑप्शन है शीट मेटल में, ये बाकी के ऑप्शन आपको हाईलाइट दिख रहे हैं। अभी एक एक ऑप्शन हाईलाइट दिख रहा है। यहाँ पे फ्लेंज ऐड करना है मुझे, यहाँ पे फ्लेंज ऐड कर सकते हैं। सो फ्लेंज ऐड करने के लिए यहाँ पे इसका एजेस हमें सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे एजेस मैंने सिलेक्ट किया है इसका। अभी इसके प्लेसमेंट में जाके, इन डिटेल्स में जाके रूल्ड बेस ऑप्शन अगर मैंने लिया तो चारों साइड यहाँ पे जो है कंप्लीट लूप बोल देता हूं मैं इसको, जैसे ओके। ये बन गया बॉक्स, शीट मेटल का बॉक्स, इसको ओके बोल दिया मैंने। देखो अभी ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे कटआउट्स है। इसको अगर मैं फ्लैट करके देखूंगा, फ्लैट पैटर्न, देखो ये फ्लैट बन रहा है। कैंसल। अभी दूसरा, इसमें फ्लेंज ऐड करना है मुझे। फ्लेंज के जो टाइप्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स के फ्लेंज है, आर्क शेप, एस शेप, ओपन, प्लस, जुगल, डक शेप, ये डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है। ओपन शेप चाहिए मुझे, यहाँ पे ओपन शेप लिया मैंने फॉर एग्जांपल, और इसको अप्लाई करना है मुझे। ये एजेस को अप्लाई करना है यहाँ पे। ये देखो इनसाइड मैंने क्या किया है, शार्प एजेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे ओपन शेप अप्लाई कर दिया है यहाँ पे।
देखो इस एज को हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं इसको। देन यहाँ पे एक्सट्रूड करके ऑप्शन है, एक्सट्रूड में क्या है, अभी यहाँ पे एक एज हम क्रिएट करेंगे जो कि आर्क शेप रहेगा। यहाँ पे एक एजेस क्रिएट करते हैं आर्क शेप वाला। अभी यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, इसको इनसाइड ले लेता हूँ थोड़ा, ये इनसाइड लिया। अभी इनसाइड लेने के बाद यहाँ पे मटेरियल जो है तो कट हो रहा है, तो यहाँ पे शार्प एजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलीफ अप्लाई करते हैं, रिलीफ। यहाँ पे रिलीफ का ऑप्शन है, यहाँ पे रिलीफ जो है, कौन सा रिलीफ चाहिए, रेक्टेंगुलर रिलीफ चाहिए। देखो यहाँ पे हमने जो प्लाज्मा कटिंग मशीन का जो नोज रहता है, नोजल रहता है, वो नोजल का जैसे डायमेंशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर राउंड वाला चाहिए तो राउंड वाला लेंगे, अब राउंड, ये अब राउंड वाला आ गया। अगर रेक्टेंगुलर वाला चाहिए, रेक्टेंगुलर वाला आएगा। यहाँ पे इसका डिस्टेंस मेंटेन करना है, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। अभी दोनों साइड चाहिए हमें, दोनों साइड आ गया, बोथ साइड आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं शीट मेटल को। देन यहाँ पे कटआउट क्रिएट करना है। अभी एक्सट्रूड में हमने क्या देखा है, अभी प्लेनर देखा है, प्लेनर में ऐसे बॉक्स क्रिएट करके देखा है। लेकिन एक्सट्रूड में अगर मुझे करना है तो एक्सट्रूड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूं। एक्सट्रूड में मैं ओपन प्रोफाइल क्रिएट करता हूं, सिंपल, ये फेस के ऊपर नॉर्मल टू स्केच, और यहाँ पे जैसे भी प्रोफाइल मुझे क्रिएट करना है, देखो यहाँ पे शीट बन गया है, और सिंपली उसको ओके कर दिया। एक्सट्रूड जो ऑप्शन है इसमें आप एडिशनल सिंगल लाइन डायग्राम, मतलब क्लोज लुक नहीं चाहिए, उसमें क्लोज लुक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वापस अगर आपने एक्सट्रूड लिया, इस फेस के ऊपर मुझे एक्सट्रूड करना है, क्या एक्सट्रूड करना है, सर्कल क्रिएट करना है मुझे। सो मैंने सर्कल यहाँ पे क्रिएट किया, ओके बोल दिया। अभी देखो यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड जो कुछ भी चाहिए यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे पंच क्रिएट करना है। सो पंच क्रिएट करने के लिए एक बॉक्स क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पे एक बॉक्स ही हम क्रिएट करेंगे। मैं तो इसी के ऊपर ही अप्लाई करके देखते हैं। चलो वेंटिलेशन वगैरह जो कुछ भी लोअर्स वगैरह है, यहाँ पे पंच का प्रोफाइल है, पंच फ्रॉम डायफ्रॉम, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है, फ्लैट लोअर्स, फ्लैट लोअर्स यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको देखना है, ये सेकंड विंडो यहाँ पे ओपन होगा, ये लोअर्स का प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो कहाँ पे चाहिए लोअर्स का प्रोफाइल, मुझे ये फेस के ऊपर चाहिए। सो यहाँ पे ऐसे लोअर्स क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे रेफरेंसेस देना है एक्स एंड वाई। ये रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। सपोज यहाँ पे मैंने ये वेंटिलेशन प्रोफाइल लोअर्स का दे दिया है। अब यहाँ पे ओके बोल देना है। देखो यहाँ पे लोअर्स का प्रोफाइल आ गया। इसको पैटर्न करना है मुझे, इजिली इसको पैटर्न कर सकते हैं। मेक इट पैटर्न, डायरेक्शन पैटर्न, ये हो गया डायरेक्शन पैटर्न। ये डायरेक्शन पैटर्न में यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्रिएट करना है मुझे, सेकंड साइड डायरेक्शन देना है मुझे। ये सेकंड साइड डायरेक्शन मैंने दे दिया। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना रखना है, डिस्टेंस सेकंड साइड नंबर्स कितने चाहिए, 5 नंबर चाहिए सपोज, ओके। देखो ये बन गया वेंटिलेशन का लोअर्स का प्रोफाइल। दूसरा मुझे प्रोफाइल क्रिएट करना है। सो यहाँ पे अगेन गो टू पंच, यहाँ से सेकंड प्रोफाइल लिया मैंने,
कटआउट फ्रॉम लेना है। ये देखो यहाँ पे प्रोफाइल आपको शो हो रहा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप यूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट करने के लिए टाइम लगेगा ज़्यादा। ऑफसेट फ्रॉम लिया मैंने यहाँ पे। ऑफसेट फ्रॉम में मुझे क्या करना है, ये फेस के ऊपर देना है, यहाँ पे ये कॉर्नर यहाँ पे देना है मुझे। यहाँ पे भी दो रेफरेंसेस एक्स एंड वाई, ये यहाँ पे अप्लाई किया, देन ओके। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने एक फ्लेंज अटैच किया अभी, यहाँ पे एक फ्लेंज मैंने अटैच किया है, ऐसा ओके बोल दिया इसको। अब यहाँ पे मुझे कटिंग ऑपरेशन देना है। सो कटिंग ऑपरेशन के लिए मैं इसको बेंड बैक करता हूं, अनबेंड, अनबेंड करना है मुझे इसको। अनबेंड करने के बाद ओके बोल दिया जस्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कटिंग ऑपरेशन क्रिएट करके उसको वापस बेंड बैक करना है। ओके, यहाँ पे एक्सट्रूड कट करके ऑप्शन है, एक्सट्रूड कट, ये ऑप्शन मैंने लिया, ये फेस के ऊपर चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे ये प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया एग्जांपल के लिए, ओके बोल दिया, देखो, और ओके। देन इसको मैं बेंड बैक करता हूं, ये हो गया बेंड बैक, ओके। देखो प्रॉपर कटिंग का प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस से किया तो बेंड और बेंड बैक कंपलसरी, ये प्रोसेस हमें यूज करना है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है शीट मेटल में जो कि हम यूज कर सकते हैं। इसको फ्लैट पैटर्न करना है, इसका डेवलप लेंथ हमें क्रिएट करना है, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज में, सॉरी प्रिपेयर में मॉडल प्रॉपर्टीज, ये मॉडल प्रॉपर्टीज में यहाँ से मटेरियल अप्लाई करना है। बाकी की जो कुछ भी रिलेटेड सेटिंग है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टॉलरेंस वगैरह कितना रखना है, डिजाइन रूल के अकॉर्डिंग, शीट मेटल के अकॉर्डिंग कितना टॉलरेंसेस रखना है हमें, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। बेंड अलाउंस, के फैक्टर, वाई फैक्टर, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चेंज किया, चेंज में आपको कौन सा फैक्टर चेंज करना है डेवलप लेंथ के लिए, तो यहाँ पे के फैक्टर, वाई फैक्टर यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम बाय वैल्यू। यहाँ पे मटेरियल के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना पड़ता है। बेंड के रिलेटेड सेटिंग है, यहाँ पे रिलिप के रिलेटेड सेटिंग है, कौन सा चाहिए, सीम है, माइटर कट है, ये माइटर कट वाला प्रोफाइल है। ये हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग हम इसमें कर सकते हैं जो कि हमें यूजफुल है डेवलपमेंट लेंथ के लिए। अगर इसका मुझे फ्लैट पैटर्न क्रिएट करना है, सो फ्लैट पैटर्न क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फ्लैट पैटर्न करके ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने जस्ट इसको फ्लैट, मेक अ फ्लैट पैटर्न बोल दिया है, इसको ओके बोल दिया है। यहाँ पे ये हो गया इसका फ्लैट पैटर्न। और यहाँ पे क्रिएट अ इंस्टेंस, इसका इंस्टेंस मुझे क्रिएट करना है, कौन सा, पार्ट 1, ये अपना ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे पार्ट 1, यहाँ पे क्रिएट, ओके, यहाँ पे क्रिएट का प्रोफाइल, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट का प्रोफाइल है, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। देन दूसरा यहाँ पे फैमिली टेबल है, फैमिली टेबल में जो कुछ भी ऑपरेशन, फैमिली टेबल अगर हम देखेंगे, एक सिंपल एक वॉशर क्रिएट करता हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे सपोज नंबर ऑफ प्रोफाइल क्रिएट करना है। जस्ट इसमें एक को गाइड पिन है, सेकंड को गाइड पिन नहीं है, डायमीटर रेडियस कम ज्यादा है, तो फैमिली टेबल में चला जाता है। फॉर एग्जांपल बोल्ट लेंगे हम, बोल्ट अभी M12 का है, M24, जो कुछ भी वैल्यू है वो हम एक बोल्ट चेंज करने के बाद नंबर ऑफ बोल्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, वो है फैमिली टेबल। इसमें फैमिली टेबल टूल है। ये हो गया शीट मेटल का बेसिक इंफॉर्मेशन, ओके। ये बाकी के जो फीचर्स वगैरह ये देखने के लिए एक्चुअली बहुत टाइम लगेगा। देन यहाँ पे इंजीनियरिंग फीचर है, ये सब एडवांस फीचर से यहाँ पे बेंड के रिलेटेड एडवांस फीचर है।
यहाँ पे एडिटिंग रिलेटेड फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन हम सॉलिड को शीट मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन में जाके कन्वर्ट टू सॉलिड टू शीट मेटल यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जो प्रोफाइल हमने सॉलिड क्रिएट किया है उसमें शीट मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है शीट मेटल का बेसिक एग्जांपल। फ्लैट पैटर्न को हटा दिया मैंने, ये हो गया शीट मेटल। देन हम असेंबली में चले जाते हैं। असेंबली में यहाँ पे न्यू एज असेंबली, असेंबली में डिजाइन, रिमूव यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट, यहां से मुझे चेंज करना है। ओके, MMKS असेंबली डिजाइन, MMKS, ओके, असेंबली डिजाइन, ये ऑप्शन हमें लेना है। इसको ओके बोल दिया मैंने जस्ट। अभी इसमें ग्राफिक्स कार्ड के रिलेटेड कुछ तो बता रहा है। ठीक है, अभी ये नया वर्जन है तो इसमें सिमुलेटर भी है, सिमुलेशन भी लाइव सिमुलेशन करता है वो, उसके वजह से ग्राफिक्स का इशू देता है वो। अभी यहाँ पे मैं एक कौन सा भी एक वर्किंग डायरेक्टरी एक सेट कर देता हूँ। मैनेज, पहले देख लेते हैं इसमें। जस्ट चेक करेंगे इसमें। इसमें ओपन, इसमें एक असेंबली ले लेंगे हम, कौन सा, एक सिंपल वाला असेंबली जो कि जल्दी हो जाएगा। असेंबली साइकिल प्रोजेक्ट्स, ये कौन सा नॉर्मल असेंबली है। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट असेंबलीज है। यहाँ पे पार्ट कॉल करना है हमें, तो सिंपल वाला असेंबली देखना है। ये सब ऑटोमोबाइल का है। 7 नंबर, नंबर, देखो यहाँ पे कुछ असेंबलीज मिल जाएगा। व्यू थंबनेल्स, सपोज ये असेंबली मैंने ओपन किया, देखो यहाँ पे असेंबली करते टाइम यहाँ पे क्या किया है, पार्ट को असेंबल, एडिट डेफिनेशन यहाँ से डायरेक्टली, और डायरेक्टली यहाँ पे पार्ट असेंबल किया है। तो सेम पार्ट हमें ऐसे यहाँ पे असेंबल करना है। सो असेंबल कैसे करना है, इसके ऊपर हम एग्जांपल ले लेंगे। ये जो असेंबली है इसका मैं बैकअप लेता हूँ, इसका वर्किंग डायरेक्टरी में पहले सेट कर देता हूँ। ये एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है,
बन जाएगा ये, तो दूसरा लगेंगे। असेंबली व्यू, देखो ये सिंपल असेंबली है। अभी ये सिंपल असेंबली अगर हमें करना है तो इसमें एक बेसिक ये वाला पार्ट है, इसको मैंने एडिट डेफिनेशन किया, ये बेसिक पार्ट हो गया है यहाँ पे, पहले वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। देन सेकंड पार्ट ये अप्लाई किया, ये गाइड पिन, यहाँ पे गाइड पिन दिख रही है आपको। इसका वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर देते हैं पहले, मैनेज, सेट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका बैकअप लेता हूं मैं, फाइल सेव एज बैकअप, ओके। अभी यहाँ पे बैकअप में ओपन हो जाएगा फाइल, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है, सभी पार्ट उसके रिलेटेड जो कुछ भी है सभी फाइल इसमें आ गया है। अभी यहाँ पे न्यू असेंबली क्रिएट करेंगे हम। न्यू असेंबली क्रिएट करने के बाद यहाँ पे असेंबली में यहाँ पे ऑप्शन हटा देना है हमें, जो कुछ भी नाम है असेंबली का नाम देना है। देन ओके, MMKS असेंबली डिजाइन ये हमने सिलेक्ट किया यहाँ से। अभी पहला जो असेंबली है उसका पहला जो पार्ट है वो हमें देखना पड़ेगा। ये कुछ काम का नहीं है, ये फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। ये स्केच फाइल को भी डिलीट कर देते, ये दो ही फाइल हमें चाहिए था। ओके, पहले पार्ट का नाम क्या है, ये इसका नाम है, ये हमें कॉपी करना है। ये पार्ट M88 M152। सो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। यहाँ से असेंबली में जाने के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं व्यू में, थंबनेल्स में, तो पता चलेगा। ये वाला पार्ट है तो इसको हम ओपन करते हैं। ये पार्ट मैंने ओपन किया, इसको पहले डिफॉल्ट लोकेशन पे रख देना है क्योंकि ये पार्ट डिफॉल्ट वाला है, इसको ओके बोल दिया। देन सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसमें गाइड पिन के रिलेटेड ये जो पार्ट है 8412 ये पार्ट कॉल करके हमें ये पार्ट यहाँ पे फिक्स कर देना है। सो ये पार्ट यहाँ पे आएगा 84121A। अगेन असेंबल 84121A, ये वाला पार्ट है वो, इसको मैंने कॉल किया। अभी इसको कॉल करने के बाद ये जैसे भी असेंबल हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसको सेट कर देता हूँ। पहले इधर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये आउटर साइड फिक्स हो रहा है और ये बाहर की तरफ है, इसके आउटर साइड फिक्स हो रहा है। अगर प्रॉब्लम है तो ये विंडो जो है इसको हम छोटा कर देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। यहाँ से असेंबली 2, अब इसको मुझे असेंबल करना है। सो असेंबल करने के लिए देखो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आया क्योंकि ये पार्ट असेंबल नहीं है। गो टू एडिट डेफिनेशन, इसको हम रोटेट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे भी रोटेट करना है हमें रोटेट कर सकते हैं इसको। देखो ऐसा मैंने उसको पोजीशन पे रोटेट कर दिया है। अगर जैसे भी हमें रोटेट करना है वैसे रोटेट कर देना है उसको। यहाँ पे देखो ये प्लेनर फेस की तरफ ये बाहर आ रहा है। सो ये भी हमारा प्लेनर फेस की तरफ बाहर आ रहा है। अभी इसका जो प्लेसमेंट है, ये फेस यहाँ पे मैच हो रहा है। ओके, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एंगल कंस्टेंट कॉन्सिडेंट बोल देना है इसको। देन यहाँ पे एक्सिस टू एक्सिस कंस्टेंट आने वाला है। यहाँ पे सेकंड कंस्टेंट एक्सिस टू एक्सिस। ओके, अगेन वापस एक कंस्टेंट लेना है, न्यू कंस्टेंट
न्यू कंस्ट्रेंट कहाँ पे लेना है हमें, दिस एक्सिस टू दिस होल। ओके, ये हो गया फुल्ली कंस्ट्रेंट। यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए आपको फुल्ली कंस्ट्रेंट, तो ये पार्ट प्रॉपर फिक्स होता है। इसको ओके बोल दिया। देन सेकंड जो है, ये यहाँ पे गाइड पिंस, जो कुछ भी पार्ट आ रहा है यहाँ पे गाइड पिंस के रिलेटेड, इसका नाम क्या है, यहाँ से गाइड पिन अप्लाई करेंगे हम। देन इसके वॉशर से, ये वॉशर है। देन इसका लॉकिंग नट है, ये लॉकिंग नट है। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। MS35206, again open assembly, MS35, देखो यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ये ले लिया, यहाँ से ओपन बोल दिया। अभी यहाँ पे कौन सा चाहिए, वहां पे नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट करके रखा है। एक बोल्ट अगर मैंने क्रिएट किया तो उसके M1 M2 M12 जितने भी चाहिए उतने हम क्रिएट कर सकते हैं, वो फैमिली टेबल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नो इंटरफेस, ओके। अब यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, इसको अप्लाई करना है। तो इंसर्ट करने के लिए इसका व्यू लुकआउट देख लेते हैं एक बार। इनसाइड फेस की तरफ है, तो ये एक्सिस को ये एक्सिस मैच हो रहा है यहाँ पे। देन ये फेस यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस कोइंसिडेंट है यहाँ पे। अभी ये जो बोल्ट है ये यहाँ पे फिक्स होने वाला नहीं है, ये डिफरेंट बोल्ट हमने अप्लाई किया है। तो उसमें कौन सा बोल्ट है वो हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो रिप्लेस कैसे करना है वो भी देख लेंगे। सो मैं ये जो बोल्ट है ये सेम बोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे रिपीट कमांड है, दो कंस्टेंट मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे दो कंस्टेंट मुझे सिलेक्ट करना है। देन ऐड बोल देना है। यहाँ पे पहला मैंने सिलेक्ट किया है ये वाला फेस, देन सेकंड किया है ये वाला फेस, यहाँ पे ओके। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो सेम टाइप का बोल्ट अप्लाई करना है। सो सेम टाइप का बोल्ट अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एग्जैक्ट उसका पार्ट नंबर सर्च करना है। थ्री 5207 219, ये 206 है, 219 है। सो ये मुझे रिप्लेस करना है वहां पे 219 206 35207। इसको राइट क्लिक करके रिप्लेस। अब रिप्लेस कहाँ पे करना है मुझे, यहाँ पे इसका नंबर दिख रहा है, ओपन लोकेशन में जाना है, 219 ये वाला है वो, ओके बोल दिया, अप्लाई, ओके। ये हो गया चेंज। देखो यहाँ पे सेम इसको भी मुझे रिप्लेस करना है। अगेन राइट क्लिक, रिप्लेस। इसको रिप्लेस करने के लिए सेम 219, ओके, अप्लाई, ओके। वापस मुझे वॉशर अप्लाई करना है यहाँ पे, ये वॉशर ले लिया मैंने। अब ये वॉशर भी सेम एक्सिस मैनुअल पोजीशन पे लेता हूं मैं इसको, ये एक्सिस इसके एक्सिस के साथ, तो मैंने ड्रैग किया। अभी ये वॉशर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जस्ट आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ये जो फेस है इनसाइड फेस, ये फेस को मैच हो रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस के प्लेस पे कॉन्सिडेंस चाहिए मुझे, यहाँ से हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल असेंबली में मुझे क्या करना है, पार्ट क्रिएट करना है। सो असेंबली में पार्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक पार्ट क्रिएट करना है बेस्ड ऑन दिस
रेफरेंस। तो यहाँ पे क्रिएट करके ऑप्शन है, क्रिएट में पार्ट क्रिएट कर सकते हैं, सब असेंबलीज क्रिएट कर सकते हैं, हम शीट मेटल के पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो मुझे क्या करना है, पार्ट क्रिएट करना है। ओके बोल दिया मैंने इसको। देन यहाँ पे कॉपी फ्रॉम एग्जिस्टिंग लोकेट डिफॉल्ट एम्प्टी, यहाँ पे मैंने एम्प्टी ले लिया और ओके बोल दिया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ये पार्ट देखो, ये 2 नंबर पार्ट दिख रहा है आपको, इसको मुझे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक्टिव ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो एक्टिव किया है मैंने, इसको मैं ओपन करता हूं। पहले इसको डेटम प्लेन वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डेटम प्लेन एक्सिस वगैरह प्लेस करना है। कोऑर्डिनेट मैंने प्लेस किया, डेटम प्लेस किया। देखो ये कोऑर्डिनेट आ गया, डेटम प्लेन भी आ गया इसका। ठीक है, अगेन मैं चले जाता हूँ ये असेंबली पे और यहाँ पे इसको एक्टिवेट किया मैंने अगेन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग पार्ट क्रिएट करना है। सो पार्ट क्रिएट करने के लिए एक्सट्रूड टूल, जो कुछ भी टूल आप ऑपरेट कर रहे हो वो टूल ले सकते हैं। ये फेस के ऊपर हमें क्रिएट करना है, नॉर्मल टू दी स्केच। और यहाँ पे जो कुछ भी पार्ट हमें क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका ही प्रोजेक्ट एग्जांपल ले लेता हूँ एक। ये प्रोजेक्ट लाइन क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल इसको ज्वाइन कर देते हैं। फ्यूचर इनकम्प्लीट, ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, देखो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे ओके बोल दिया। अब ये फ्यूचर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसका थिकनेस वगैरह कितना देना है आप दे सकते हैं, 15, 5 दे दिया सपोज, ओके बोल दिया। यहाँ पे अगेन मेन असेंबली मुझे क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है। देखो असेंबली में ही मैंने क्या किया है, पार्ट क्रिएट किया है। अगर इसी पार्ट को मुझे मिरर करना है असेंबली में, सो असेंबली मिरर, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको मिरर। ये मिरर में आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू पार्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो 3 नंबर पार्ट, ये 2 नंबर पार्ट है और ये 3 नंबर पार्ट है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको मिरर प्लेन, ये है उसका मिरर प्लेन। ओके, देखो ये यहाँ पे मिरर हो गया ये पार्ट। तो अगर मुझे सब असेंबलीज क्रिएट करना है, असेंबली के अंदर असेंबली क्रिएट करना है, तो सब असेंबली हम यहां से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल यहां से न्यू एज अ सब असेंबली, ओपन एम्प्टी, जैसे हमने पार्ट क्रिएट किया है वैसे सब असेंबलीज क्रिएट करना है, उसको ओपन बोल दिया। देन यहां से ये सब असेंबली के अंदर हमें पार्ट कॉल करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे असेंबल, जो कुछ भी पार्ट है उसको कॉल करना है। जो कोई भी पार्ट रहेगा उसको हमें कॉल करना है। सपोज मैं ये नट को कॉल करता हूं, ओपन, इसके अंदर ओपन करता हूं ये, अगेन दिस प्लेट। अब ये प्लेट जो है मैं इसको फिक्स कर देता हूं, टेम्पररी फिक्स। ओके, अब ये जो असेंबली है मेन असेंबली को मैं एक्टिवेट कर देता हूं। देखो अब ये जो असेंबली है, ये 2 जो पार्ट है ये डिफरेंट सिलेक्ट हो रहा है और ये मेन असेंबली डिफरेंट है।
यहाँ पे रीपेंट में देखा आपने तो पता चलेगा आपको। रीपेंट। सो यहां से हम इस मेथड से असेंबली क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे ये असेंबली में सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, कुछ पार्ट चाहिए कुछ नहीं चाहिए, वैसे अगर क्रिएट करना है, गो टू व्यू मैनेजर, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, और ये सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन में यहां से नया क्रिएट करना है हमें। सपोज ए, एंटर बोल दिया है। यहाँ पे जो कुछ भी पार्ट है लिस्टेड वो सब सिलेक्ट दिख रहे हैं आपको। अभी मुझे एक असेंबली में ये वॉशर नहीं चाहिए और ये स्क्रू नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिंपली डिसिलेक्ट कर देता हूं। ये सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है, ये दोनों मैं डिसिलेक्ट कर देता हूं। वॉशर भी नहीं चाहिए मुझे इसमें, वॉशर भी डिसिलेक्ट कर दिया मैंने। ओके, ये हो गया। इसको बोला अप्लाई, ओपन। देखो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है व्यू। अगर मास्टर व्यू में जाएंगे तो देखो यहाँ पे वॉशर दिख रहा है, बोल्ट दिख रहा है। अगर इस व्यू में जाएंगे तो इसमें हमें ये एक्सक्लूड किया है हमने इसको। तो ये असेंबली में बहुत बड़ा एडवांटेजेस है, हम इजीली असेंबल कर सकते हैं पार्ट को। ओके, इसको डिफॉल्ट मास्टर रिप में रख देता हूं, कैंसल। अभी इसका क्या करना है, हमें ड्राइंग क्रिएट करना है। सो ड्राइंग क्रिएट करने के लिए हमें कंपलसरी एक काम करना है, न्यू ड्राइंग, न्यू एज अ ड्राइंग। यहाँ पे ड्राइंग है, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट। ये डिफॉल्ट टेम्पलेट है, यहाँ पे इसको हटा देना है। यहाँ से जो कुछ भी नाम है ड्राइंग का वो नाम दे दो, ASM 000002। ड्राइंग फाइल ओपन। यहाँ पे टेम्पलेट्स है, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट। यहाँ से आप डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज कर सकते हो, करना है तो, नहीं तो एम्प्टी भी ले सकते हो। विथ फॉर्मेट चाहिए, विथ फॉर्मेट यहाँ पे मिलेगा आपको। ब्राउज में जाके यहाँ पे विथ फॉर्मेट वाला टेम्पलेट्स मिलेगा। यहाँ से यहाँ पे मैंने ओपन किया सी टेम्पलेट और यहाँ पे ओके बोल दिया। देखो यहाँ पे मास्टर रिप कौन सा चाहिए आपको व्यू, जो हमने क्रिएट किया है। डिफॉल्ट वाला व्यू चाहिए जहाँ पे वॉशर और बोल्ट नहीं था, वो व्यू चाहिए। तो यहाँ पे मास्टर रिप पे मैं ओके बोल देता हूँ इसको। मास्टर रिप पे ओके बोलने के बाद यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट हो गया है। अभी व्यू हमें यहाँ पे कॉल करना है। व्यू कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे ड्राइंग मॉडल सेट करना है। पहले यहाँ पे हमारा ड्राइंग मॉडल जो है ये असेंबली है। ये ड्राइंग मॉडल, यहाँ पे ऐड मॉडल, यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ये ऑप्शंस है। ऐड मॉडल पे चला गया मैं। ऐड मॉडल में मुझे क्या चाहिए, ये सिंगल प्लेट चाहिए, ये वाला प्लेट चाहिए मुझे। तो पहला मुझे असेंबली चाहिए, फर्स्ट वाला जो है असेंबली व्यू चाहिए मुझे, ये असेंबली व्यू चाहिए। सो मैंने इसको क्या किया, ओपन किया। देन मास्टर रिप में ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया। जनरल व्यू, कंबाइन, ओके, ये आ गया। यहाँ पे देखो, अब इसका व्यू कौन सा सेट करना है, हमें यहाँ से व्यू सेट करना है। यहाँ पे व्यू टाइप है, विजिबल एरिया, स्केल, सेक्शन, व्यू स्टेट, व्यू डिस्प्ले, ये ऑप्शन है यहाँ पे। अगर मुझे स्केल इंक्रीज डिक्रीज करना है, कस्टम स्केल, यहाँ से कस्टम स्केल मैंने चेंज किया। अप्लाई करना है उसको, ये यहाँ पे अप्लाई किया। अभी यहाँ पे व्यू सेट करना है मुझे, व्यू टाइप, इसका फ्रंट ओरिएंटेशन पे अप्लाई किया, ये फ्रंट ओरिएंटेशन अप्लाई हो गया। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। मूवमेंट, व्यू का जो मूवमेंट है इसको मूव करने के लिए हम लॉक अनलॉक करेंगे। अब यहाँ पे मुझे प्रोजेक्शन व्यू क्रिएट करना है। सो ये प्रोजेक्शन व्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसका प्रोजेक्शन आएगा टॉप का ये, और इसका ये साइड का प्रोजेक्शन चाहिए, ये आ गया इसका साइड का प्रोजेक्शन। अब इसमें डाटम प्लेन वगैरह सब कुछ शो हो रहा है।
तो मुझे क्या करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है, सॉलिड फॉर्म में नहीं दिखना चाहिए मुझे, हिडन लाइन में शो करना है। सो ये जो बेसिक व्यू है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे व्यू डिस्प्ले, ये व्यू डिस्प्ले में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, फॉलो एनवायरमेंट के प्लेस पे नो हिडन बोल देता हूँ मैं उसको, अप्लाई ओके। यहाँ पे डेटम प्लेन वगैरह हाइड कर देता हूँ मैं टेम्पररी। देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया है व्यू। अब यहाँ पे दूसरा जो है इसको भी सेम तरीके से व्यू डिस्प्ले नो हिडन, अप्लाई ओके, सेम नो हिडन, व्यू डिस्प्ले नो हिडन, अप्लाई देन ओके। यहाँ पे 3D व्यू प्लेस करना है हमें, आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे प्लेस करना है। सो आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे प्लेस करने के लिए हमें यहाँ पे इसको पहले ओरिएंटेशन सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा ओरिएंटेशन चाहिए मुझे, ऐसे ओरिएंटेशन पे रखना है। सो ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रीओरिएंट बोला मैंने यहाँ पे, रीओरिएंट, और इसको व्यू को नाम दे दिया, सपोज XYZ नाम दे दिया मैंने इसको, और इसको मैंने सेम ओरिएंटेशन पे सेव किया। अगर मुझे आइसोमेट्रिक क्रिएट करना है तो उसका प्लेन कौन सा रखना है, यहाँ पे फ्रंट और टॉप, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट प्लेन जो है इसका मैंने फ्रंट इसको अप्लाई किया है, ये वाले फेसेस को। देन टॉप प्लेन ये वाला है अपना, ओके, ये हो गया सेट। पर्सपेक्टिव ऐसे दिखेगा, ओरिएंटेशन ऐसे दिखेगा। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक क्रिएट करना है। सो आइसोमेट्रिक क्रिएट करने के लिए मैं इसका ओरिएंटेशन ऐसे रख देता हूँ, मुझे एक्सप्लोर भी क्रिएट करना है, इसका XYZ दे दिया है, ओके बोल दिया है इसको। अब यहाँ पे जो व्यू मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे मुझे क्या किया करना है, एक्सप्लोर व्यू क्रिएट करना है इसका। जैसे पिन रिमूव हो रहा है, सेम थिंग यहाँ पे व्यू मैनेजर में यहाँ पे इन ड्राइंग एक्सप्लोर व्यू, एक्सप्लोर 1, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लोडेड व्यू क्रिएट किया हुआ है, यही हम अप्लाई करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है एक्सप्लोर क्रिएट करने की। सो अगेन हम ड्राइंग पे चले जाते हैं, यहाँ पे ड्राइंग फाइल, यहाँ पे मुझे वापस व्यू प्लेस करना है सेम। अगर उसका स्केल कम ज्यादा करना है तो स्केल यहाँ से कम ज्यादा कर सकते, कस्टम स्केल, मैं यहाँ पे 2 का स्केल दे देता हूँ, अप्लाई। यहाँ पे व्यू स्टेट करके ऑप्शन है, जहाँ पे हमने एक्सप्लोर व्यू क्रिएट किया है और व्यू हमने सेट किया है। व्यू टाइप यहाँ पे XYZ यहाँ पे आया नहीं है, एक सेकंड, व्यू मैनेजर, एक्सप्लोडेड ओरिएंटेशन, ओरिएंट व्यू, यहाँ पे हमें न्यू क्रिएट करना है। ये हमने सेट किया है यहाँ पे, कैंसल। अब यहाँ पे ड्राइंग फाइल, डबल क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ पे देखो आ गया, अप्लाई बोल दिया उसको। यहाँ पे हमें चेंज करना है इसका एक्सप्लोडेड, यहाँ पे जो कुछ भी एक्सप्लोड हमने क्रिएट किया है, एक्सप्लोडेड 001, देन अप्लाई किया इसको, ये हो गया अप्लाई, यहाँ पे इसको ओके बोल दिया। सो ये असेंबली व्यू हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर मुझे इसका नेक्स्ट शीट ऐड करना है, सो ऐड शीट करके ऑप्शन है यहाँ पे। ऐड शीट में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं पेपर साइजेस, A4 साइज का शीट चाहिए आपको, A4 साइज का शीट आ गया ये। अगर इसमें टेम्पलेट चाहिए आपको तो टेम्पलेट जो है ये ब्राउज में जाके मिलेगा। ये आ गया सी फॉर्मेट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, नया ड्राइंग सेट करना है, मतलब एक सिंगल पार्ट को मुझे सेट करना है।
सो अगेन मुझे क्या करना है, ड्राइंग मॉडल, सेट मॉडल, यहाँ पे ऐड मॉडल पे जाना पड़ेगा वापस मुझे। ऐड मॉडल पे जाने के बाद ये प्लेट मैंने सपोज सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मुझे सेट करना है मॉडल। देखो यहाँ पे कौन सा था ये, आई थिंक यही था, ये सेट हो गया है, सेट मॉडल, हाँ ये पार्ट है, ये यहाँ पे सेट हो गया दिख रहा है अभी। ओके, वापस मुझे वो पार्ट को ड्राफ्टिंग करना है। सो ड्राफ्टिंग के लिए सेम प्रोसेस, मैंने जस्ट उसको प्लेस किया, स्केल यहाँ पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा, अप्लाई, यहाँ से व्यू हमें सेट करना है, व्यू टाइप फ्रंट व्यू, अप्लाई, ओके, देन यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका व्यू डिस्प्ले, नो हिडन, अप्लाई, ओके। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, सिंपली इसको अनलॉक कर देना है व्यू को। देखो अनलॉक मोमेंट, अब इसको मैं मूव कर सकता हूं, लॉक किया है मैंने उल्टा, अनलॉक हो गया है। अब इसको प्रोजेक्शन व्यू देना है, यहाँ पे प्रोजेक्शन व्यू दिया है, यहाँ पे इसका सीरीज। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, डायमेंशन क्रिएट करना है, व्यू डिस्प्ले, फॉलो इन्वायरमेंट, नो हिडन, अप्लाई, क्लोज, सेम थिंग यहाँ पे डबल क्लिक, व्यू डिस्प्ले, नो हिडन, अप्लाई, ओके। 3D व्यू हमें प्लेस करना है यहाँ पे, जनरल व्यू, ओके, यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे आइसोमेट्रिक चाहिए, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन वाला, वहां पे सेट करना पड़ेगा हमें अगेन, स्केल इसका इंक्रीज किया 2, अप्लाई, ओके। ये 3D व्यू हमने यहाँ पे प्लेस किया है। अब इसका डायमेंशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एनोटेट टूलबार है, एनोटेट, एनोटेट टूलबार में ये डायमेंशन आपको टूल दिख रहा है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दिख रहा है, ऑर्डिनेट डायमेंशन, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डायमेंशन क्रिएट करना है। डायमेंशन क्रिएट करने के लिए जो कुछ भी डायमेंशन हमें क्रिएट करना है उसको हमें, फॉर एग्जांपल इसका डिस्टेंस हमें देना है, ये हो गया। देन इसका हाइट का डिस्टेंस हमें देना है, बाय प्रेसिंग कंट्रोल की एंड मिडल क्लिक एरो, ये डिस्टेंस दे दिया। जो कुछ भी डिस्टेंसेस आपको देना है वो आप दे सकते हैं। ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ओके। डायमीटर, रेडियस वगैरह जो कुछ भी देना है आपको, यहाँ पे सिंगल क्लिक किया, ये रेडियस आएगा, ओके। यहाँ पे सेम थिंग, डायमेंशन ऑन दिस रेडियस, ओके। ये वैल्यूज आपको, इसका थिकनेस शो करना है, यहाँ पे थिकनेस वैल्यू आएगा, ओके। ये ऐसे हम डायमेंशन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे GD&T अप्लाई करना है, सो GD&T अप्लाई करने के लिए यहाँ से ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे GD&T अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, ये डायमेंशन के ऊपर अप्लाई करना है। सपोज मुझे ये डायमेंशन के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करना है, सो टॉलरेंस कौन सा लेना है हमें, वो टॉलरेंस हमें सिलेक्ट करना है बाद में। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे टॉलरेंस कौन सा चाहिए, पोजीशन चाहिए, पैरेलल चाहिए, फ्लैटनेस चाहिए, सिलेंडरिसिटी चाहिए, परपेंडिकुलर, यहाँ पे टॉलरेंस दिया हुआ है, तो ये टॉलरेंस हम यहाँ से ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे फ्लैटनेस वाला, ये फ्लैटनेस का दिखाया यहाँ पे। यहाँ पे डेटम प्लेन, यहाँ पे डेटम प्लेन हमने क्रिएट नहीं किया है एक्चुअली। अगर हमें डेटम प्लेन क्रिएट करना है तो वापस पार्ट मॉडलिंग में जाना है, डेटम ए, डेटम बी और डेटम सी मैं रैंडमली यहाँ पे अभी प्लेस कर देता हूँ जस्ट। इसमें सिंबल्स वगैरह अगर मुझे ऐड करना है, उसका वैल्यू कितना है, टॉलरेंस वैल्यू कितना देना है, ये टॉलरेंस वैल्यू हम यहाँ से दे सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह देना है, कुछ टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं, ओके।
यहाँ पे सिंबल्स है, सिंबल्स वगैरह कुछ ऐड करना है, यहाँ से सिंबल्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया, टॉलरेंसिंग अप्लाई किया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ पे डायमीटर का सिंबल दे देते हैं, डायमेंशन। ओके, कैंसल। मुझे एक सेकंड, ओके, ये दोनों सेम है। यहाँ से भी सेम, आपको सरफेस फिनिश सिंबल वगैरह जो कुछ भी देना है, यहाँ पे जेनरिक में जाएंगे, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड सिंबल लाइब्रेरीज है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिंग के जो सिंबल्स है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह देना है तो नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कुछ भी नोट्स है। हो गया नोट्स, तो ऐसे नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा जो है ऑफसेट नोट, लीडर नोट। अगर आपको लीडर शो करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बिल्डिंग किया है, ये हो गया लीडर नोट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेटम प्लेन का सिंबल हमने अप्लाई नहीं किया है क्योंकि पार्ट मॉडलिंग में जाके करना पड़ता है वो डेटम प्लेन अप्लाई। ऑर्डिनेट डायमेंशन आपको शो करना है, यहाँ पे ऑर्डिनेट डायमेंशन है। ऑर्डिनेट डायमेंशन में इसका जीरो लोकेशन जो है वो हमें सेट करना है। यहाँ पे मैं इसका जो जीरो है, ये प्लेन को मैं सेट करता हूँ जीरो, ऑर्डिनेट डायमेंशन। तो ये auto ordinate dimension, select object, ordinate dimension, scale, शेड, यहाँ से उसको नीचे ले लेंगे। एडिट करना है वैल्यू, हाँ हो गया। ओके, यहाँ से इसको मूव कर दिया। और ये जो टूल है कैंसल। अब यहाँ पे पहला वाला जो शीट है अपना, ये शीट पे यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल हमें अप्लाई करना है। बॉम्ब, यहाँ पे टेबल है, टेबल ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे रिपीट रीजन करके ऑप्शन है। रिपीट रीजन में आप एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर सकते हो, जो कुछ भी पैरामीटर चाहिए आपको वो पैरामीटर आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे रिपीट रीजन का टेबल बोलते हैं इसको। सेकंड, यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए क्विक टेबल दिया है इन्होंने, देखो यहाँ पे क्विक टेबल है, पार्ट, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर्स अप्लाई किया है। अगर आप ये लेते हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट आएगा ऑप्शन, देखो डिफॉल्ट वाला टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आपको ये ऑप्शन ऑपरेट करना पड़ेगा, रिपीट रीजन। यहाँ पे आपको दूसरा पैरामीटर चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट किया, असेंबली मटेरियल अप्लाई किया मैंने आपको, पैरामीटर पीटीसी मटेरियल नेम, पीटीसी मटेरियल नेम, और यहाँ पे अपडेट टेबल बोल दिया। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल है, हमने ये पार्ट को मटेरियल अप्लाई किया है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट को मटेरियल अप्लाई किया होगा तो ही मटेरियल यहाँ पे आएगा, नहीं तो मटेरियल यहाँ पे नहीं आने वाला। तो हमें वो देखना पड़ेगा, एक एक पार्ट को मटेरियल यहाँ पे अप्लाई किया है या नहीं है। ये पार्ट को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे टूल्स पैरामीटर,
मटेरियल अप्लाई नहीं किया है इसको। देखो यहाँ पे मटेरियल का पैरामीटर कुछ भी नहीं दिख रहा है, सो यहाँ पे मटेरियल नहीं दिखने वाला। तो ये सभी चीजें हमें ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल में शो कर सकते हैं मटेरियल, जो कुछ भी पैरामीटर चाहिए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका जो बॉम है वो मुझे ये असेंबली को अप्लाई करना है बिल ऑफ मटेरियल। क्रिएट बलून करके ऑप्शन है, वेरियस मेथड, क्रिएट अ बलून, ऑल, बाय व्यू, बाय कंपोनेंट एंड व्यू। ओके, सो बाय व्यू ऑप्शन लिया मैंने यहाँ पे और इसको अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे बुलियंस क्रिएट हो गए, दिख रहा है आपको? सेम यहाँ पे अगर उसको अटैच डिटैच करना है, मर्ज बुलियन करना है, सो मर्ज कर सकते हैं हम। अगर मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो हमें इसका कॉन्फ़िग की जो है वो चेंज करना पड़ता है, कॉन्फ़िग सेटिंग जो है वो चेंज करना पड़ता है। वो जो सेटिंग है यहाँ पे पैरामीटर है, ऑप्शन में ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देखो ये बेसिक कॉन्फ़िग का ऑप्शन है, इसमें आपको क्या चेंजेस करना है यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डायमेंशन के रिलेटेड मैंने फाइंड नाउ किया। यहाँ पे देखो डायमेंशन के रिलेटेड इतने सारे चीज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी टॉलरेंस के रिलेटेड चाहिए, टॉलरेंस फाइंड नाउ। टॉलरेंस कौन से फॉर्मेट में हमें सेट करना है, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसका डेसिमल कितना रखना है डिफॉल्ट। डिस्प्ले टॉलरेंस में डायमेंशन विथ और विदाउट रेफरेंसेस, यहाँ से हम यस की नो सेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डायमेंशन फाइंड नाउ, ये सब हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अभी बॉम्ब के रिलेटेड चाहिए, सो बॉम्ब के रिलेटेड यहाँ पे दिखेगा फाइंड नाउ। फॉर्मेट जो है बॉम्ब का, ये अपने को सेट बॉम्ब फाइल फॉर्मेट यूज कस्टमाइज बॉम्ब नेम एंड पाथ यहाँ पे मिलेगा। सो ये जो है ये कॉन्फ़िग फाइल है, इसका यूनिट जो है यूनिट के रिलेटेड यूनिट इंचेस है। अगर आपको डिफॉल्ट यूनिट चेंज करना है तो आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं यहाँ से, कैंसल। ओके, सो यहाँ से हम अप्लाई असेंबली में जो है असेंबली का डायमेंशन आएगा। अरे असेंबली डायमेंशन कौन सा है इसमें? ये जो कुछ भी पार्ट है इसका ओवरऑल लेंथ कितना है। फॉर एग्जांपल एनोटेट डायमेंशन, और यहाँ से हम देखते हैं ये प्लेट तक, ये असेंबली। हमेशा एक बात याद रखना है कि असेंबली में असेंबली का ही डायमेंशन शो करना है। असेंबली में पार्ट का डायमेंशन हम कभी भी शो नहीं करते। ओके, सो यहां से हम डायमेंशन ओनली असेंबली का ही क्रिएट करेंगे, ना कि पार्ट का। ओके, तो ऐसे टाइप्स के बहुत सारे ड्राइंग्स और बहुत सारे मॉडल्स हम क्रिएट कर सकते हैं क्रियो में। डिपेंडिंग आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बेस पे हम वर्क कर सकते हैं। ओके, ये जो कस्टमाइज का पार्ट है इसको एक्चुअली टाइम लगेगा। ये जो है रिपीट रीजन, इसको टाइम लगेगा। सो मैंने यहाँ पे ये शो नहीं की। ये जो बाकी के जो ऑप्शंस है ये एक्सप्लोर करने में और थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे होल टेबल है, होल टेबल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिखाया कि क्रियो में मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, शीट मेटल में वर्क कैसे कर सकते हैं, असेंबली कैसे कर सकते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया है। ललित, हेलो। यस सर। हाँ, ओके, आप कंटिन्यू करो, अभी बोल दो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है। कुछ के डाउट रहेंगे किसी के, चालू करो। मैं प्रेजेंटेशन अभी स्टॉप करता हूँ।
इसमें Thank you so much, sir, for an informative session. Now let's take some few questions from the audience. ओके So the first question is, सर अभी हम बिगिनर्स हैं, क्रियो Okay. के अलावा बाकी कैट प्रोग्राम्स कोई सजेस्ट करोगे आप? सी अभी क्रियो के अलावा दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है, अभी डिपेंड करता है आपको मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर करना है। पहला सॉफ्टवेयर आप जो करते हो वही आपको इजी लगता है। सेकंड, ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें कटिया, क्रियो, यूजी, सॉलिडवर्क, इन्वेंटर, सॉलिड एज, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। एप्लीकेशन इन द सेंस, अभी ये जो सॉफ्टवेयर है क्रियो का, ये ऑटोमोबाइल में यूज होता है, बाहर हेल्थ केयर, मेडिकल हेल्थ केयर इक्विपमेंट में भी यूज होता है, अप्लायंसेस इसमें भी यूज होता है। तो सभी जगह अगर कटिया देखेंगे तो कटिया मोस्टली फिक्सर्स एंड इसमें यूज होता है, ऑटोमोबाइल में कटिया एंड यूजी। अगर आप सॉलिड वर्क में जाएंगे तो सॉलिड वर्क जो है वो मेनली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनीज है, सॉलिड एज एंड सॉलिड वर्क्स, उसमें यूज होता है। अगर आप फैब्रिकेशन में जाओगे तो फैब्रिकेशन में ऑटोडेस्क इन्वेंटर करके मोस्टली इन्वेंटर यूज होता है उसमें। तो ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर, आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो क्रियो जो है मोस्टली कास्टिंग और शीट मेटल, इसमें ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस है इसका। और सभी कंपनीज में सभी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ऐसे नहीं कि क्रियो यही कंपनी में यूज होता है। सपोज अभी टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स में सभी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जी सर, thank you sir. Next question is difference between chamfer and chamfer trim options. चाम्पर एंड चाम्पर ट्रिम, चाम्पर एंड चाम्पर ट्रिम में क्या है, अभी सपोज एल कॉर्नर, कॉर्नर आप कंसीडर करो, कॉर्नर को मुझे चाम्पर करना है। सो चाम्पर ट्रिम में क्या होता है, जो इंटरसेक्ट लाइन है वो चली जाती है। और नॉर्मल चाम्पर जो ऑप्शन है, चाम्पर, चाम्पर विथ ट्रिम, ये डिफरेंस है दोनों में। इंटरसेक्शन ऑप्शन जो है वो चला जाएगा, जो डॉटेड लाइन दिखती है आपको वो डॉटेड लाइन नहीं दिखेगी, इंटरसेक्शन नहीं रहेगा उसमें, प्लेन रहेगा चाम्पर ओनली। सेम फिलेट में भी सेम ऑप्शन है। जी सर। Sir, the next one is difference between CAD and AutoCAD. Why do we use CAD if we have AutoCAD already? CAD and AutoCAD. CAD is a multiple tool, okay, and AutoCAD is an individual tool. First, CAD means number of software will come in CAD. If you go to analysis, fuel dynamics, there is different software. But in CAD, CATIA, Creo, UG, SolidWorks, Inventor, this category in CAD. AutoCAD, it is a different tool which is only purpose for 2D. This is the mainly difference. Okay sir, thank you. I hope that all doubts are clear now. And 3 hours well spent with amazing winds involved in amazing designing skills. Wow, what an amazing workshop. We really find this super exciting and productive. Thank you so much, sir, for having in and guiding us. It was amazing to hear you and share some experiences with you. Your words really describe your experience. We team Midextress thank you all to be such kind and curious audience. We are sure that this workshop will create better impact in your career. Just keep practicing and you are an expert. Thank you everyone. Thank you. Yeah. Thank you sir. Yeah, well.